ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 8th chapter, verse 5. That is the verse. Yeah, verse 5. साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कितवैर्हतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः। The clever Duryodhana, translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. The clever Duryodhan and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthir, who had no enemy. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhana were killed by him. All others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hair of Queen Draupadi. Purport. In the glorious days or before the advent of age of Kali, the Brahmanas, the cows, the women, the children, and old men were properly given protection. Number one, the protection of the Brahmanas maintains the institution of Varna and Ashram, the most scientific culture for attainment of spiritual life. Second, the protection of cows maintains the most miraculous form of food, that is milk, for maintaining the finer tissues of the brain for understanding higher aims of life. Number three, the protection of women maintains the chastity of society, by which we can get a good generation for peace, tranquility, and progress of life. Number four, the protection of children gives the human form of life its best chance to prepare the way of liberty from material bondage. Such protection of children begins from the very day of begetting a child by the purificatory process of Garbhadana Samskara, the beginning of pure life. Number five, the protection of the old men gives them a chance to prepare themselves for better life after death. This complete outlook is based on factors leading to successful humanity as against the civilization of polished cats and dogs. The killing of the above mentioned innocent creatures is totally forbidden because even by insulting them, one loses one's duration of life. In the age of Kali, they are not properly protected, and therefore the duration of life of the present generation has shortened considerably. In the Bhagavad Gita, it is stated that when the women become unchaste for want of proper protection, there are unwanted children called Varnasankara. To insult a chaste woman means to bring about disaster in the duration of life. Dushasana, a brother of Duryodhana, insulted Draupadi, an ideal chaste lady, and therefore the miscreants died untimely. These are some of the stringent laws of the Lord mentioned above. So, in this purport, we actually see that Srila Prabhupada is mentioning that how the degradation of Kali Yuga has happened. तो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा तो इन पांच लोगों का जो प्रोटेक्शन है वो समाप्त होता गया, और करप्शन भी, जैसे ब्राह्मणों का प्रोटेक्शन समाप्त हो गया। ब्राह्मण कौन है वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ब्राह्मण वो है जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण है। तो वास्तव में अभी कलयुग में तो कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में जो भी पैदा होते हैं शूद्र ही पैदा होते हैं। कलयुग में तो ब्राह्मण पैदा ही नहीं होते क्योंकि ब्राह्मणों के गुण ही नहीं होते। बाकी एजेस में ऐसा लोगों के पास डिस्क्रिमिनेटरी पावर होती थी, लोग चूज करते थे कि मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ या वैश्य बनना चाहता हूँ, मैं क्षत्रिय बनना चाहता हूँ। लोग वर्ण अपना स्वयं निर्धारित करते थे। जैसे आश्रम आश्रम समय के साथ होता है, वर्ण अपनी इच्छा के अनुसार होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ब्राह्मणों का अगर सम्मान नहीं होगा, जो अभी डिवोटीज हैं, दे आर एक्चुअली ब्राह्मणस, अबव ब्राह्मणस बेसिकली। सो द डिवोटीज एंड प्योर ब्राह्मणस, दोज हु आर स्टिल फॉलोइंग कल्चर, ऐसे लोगों का जब संसार में सम्मान नहीं है और उनका उनका प्रोटेक्शन नहीं है, उनकी रक्षा नहीं की जाती है, तो इससे समाज जो है करप्ट हो जाता है। बिकॉज ब्राह्मण होते हैं जो सोसाइटी को गाइड करते हैं, समाज को गाइड करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में जो ब्रह्मचारीज हैं, सन्यासीज हैं, वो गाइड कर रहे हैं सोसाइटी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना। फिरता है प्रभु हमें इतना हमें हम लोगों को गाइड करते हैं और गाइडेंस के माध्यम से हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो जब इनका ही प्रोटेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, समाज समाप्त हो जाएगा।
ऐसे ही काऊ का प्रोटेक्शन भी समाप्त कर दिया गया। आप देखेंगे वेस्ट में जो है स्लॉटर हाउसेस, जो कसाई खाने बनाए गए हैं वो भी मशीनीकृत हैं, ऑटोमेटेड है। उसमें गाय को ले जाते हैं सीधे, बस मशीन से उनको एक एक जैसे आप गन्ना काटते हैं ना वैसे काट दिया जाता है। और इंडिया में तो भी ये सबसे इंडिया में है, वेस्टर्न तो छोड़िए। यस प्रभु। इंडिया में तो वही मतलब स्लॉटर हाँ, हाउस है बहुत, अभी मशीन इंडिया वाला। में भी सेम यही हो गया है। इंडिया काऊ का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा विश्व का। तो भारत का डिग्रेडेशन होने का और कोई कारण नहीं है। आप गायों को काटेंगे, जो गायें जो भगवान को इतना प्रिय है, तो यही होने वाला है। और सरकार भी इसका कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाती, स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं लेके आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जिसमें आपको वोट चाहिए जनता के। डेमोक्रेसी इसीलिए यूजलेस है, वेस्ट है, बिकॉज अगर पॉपुलेशन यूजलेस हो गई तो राजा भी यूजलेस ही आएगा, क्योंकि उसको चाहिए वोट। उसका ये उद्देश्य नहीं है कि वो धर्म की स्थापना करे। उसका ये उद्देश्य नहीं रह जाता कि वो भक्ति की स्थापना करे, फिर उसका उद्देश्य रह जाता है कि वोट कैसे मिलेगा, अगली बार कैसे जीतूंगा। तो स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं आते। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद डेमोक्रेसी। एनीवेज, और जो विमेन है, अभी आप देखिए विमेन की चेस्टिटी सोसाइटी में, आज के समाज में विमेन की पतिव्रत जो पवित्रता है उसको सुरक्षित रखना कितना मुश्किल है, बिकॉज इतना ज्यादा इंटरमिंगलिंग एंड इंटरमिक्सिंग है दोनों जेंडर्स के बीच में, कि आप प्रोटेक्शन करना बहुत मुश्किल है। प्रोटेक्शन किया जा सकता है बट इसके साथ साथ दोनों का सपोर्ट होना चाहिए, विमेन एंड मेन दोनों का सपोर्ट होना चाहिए, तभी हो सकता है। और चौथा है बच्चों का। इतने ज्यादा अबॉर्शन हो रहे हैं समाज में इस समय, पूरे विश्व में अगर देखा जाएगा तो अबॉर्शन तो, क्योंकि जो चाइल्ड पैदा नहीं हुआ उसको तो वो जीव मानते ही नहीं है। और उसको तो वो बिना किसी रिमोर्स के, मन में जरा भी दया भी नहीं है और मन में जरा भी पश्चाताप भी नहीं है। लोगों को लगता ही नहीं है गलत, क्योंकि कुछ साइंस ने ऐसा बताया है कि 3 महीने के बाद आती है आत्मा। बट हमारा शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन कंसेप्शन होता है उसी दिन आत्मा आ जाती है उसके अंदर। और आप उसको अगर खत्म करने का प्रयास करते हैं तो मतलब आप हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि नेचुरल कैलामिटीज जो आ रही हैं, बिकॉज वी आर वी आर नॉट मेंटेनिंग, एक्चुअली वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग दीज क्लासेस। हम स्वयं इनको समाप्त कर रहे हैं, इनको इनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं और पाप करते चले जा रहे हैं। तो जितना पाप, जैसे जब धरती माता के ऊपर पाप ही लोगों का बोझ बढ़ जाता है तो वो भगवान के पास जाती हैं, कहती हैं कि आप अवतार लीजिए। तो भगवान क्या है, बीच बीच में वैसे भी अरेंजमेंट करते रहते हैं कि जब पाप का बोझ बढ़ता जाएगा तो कुछ क्लींसिंग प्रोसेस होगा, कोरोना आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, टोर्नेडो आ जाएगा, हरिकेन आ जाएगा। इस टाइप से भगवान भी क्लींसिंग प्रोसेस, नेचर भी क्लींसिंग प्रोसेस करता रहता है। और इसमें वही लोग मरते हैं जो सबसे ज्यादा पापी होते हैं, वो जो इस जन्म में, हो सकता है कुछ लोग नहीं दिखें कि इस जन्म में पापी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे पाप पहले भी किए होते हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ये जितना भी मासेस, क्योंकि जो कर्म के नियम है वो बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भी इनोसेंट व्यक्ति कभी कोई मरता नहीं है, क्योंकि हमें देखने में लगता है इस जन्म की केवल बात करोगे तो वो इनोसेंट है, तो छोटा बच्चा है, इनोसेंट है। बट छोटा बच्चा अगर छोटे बच्चे के रूप में ही वो इस संसार से चला गया किसी आपदा के कारण, इसका अर्थ ये है कि कहीं उसने भी किसी छोटे बच्चे की हत्या की होगी। कर्म के नियम ऐसे ही है। कर्म के नियम ऐसे ही हैं कि आप जिस समय जैसा एक्शन रिएक्शन, जो जिसने जैसा किया होगा वैसा उसको फल मिल जाता है। तो भले ही हमें ना दिखाई देता हो, बिकॉज शरीर बदल गया, किसी ने अपना कपड़ा बदल लिया और बोलने लगा कि मैंने तो ये क्राइम किया नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो शरीर तो कपड़ा ही है भगवत गीता के अनुसार। द प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड मैन गिव्स देम ए चांस। तो ऐसे जो वृद्ध लोग हैं उनका, उनकी रक्षा भी बहुत जरूरी है। तो वृद्ध लोगों को आप अपने माता पिता को आजकल समाज में कहाँ जा छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में जाके, और बड़ा स्टेटस सिंबल मानते हैं कि हमने अच्छा वृद्धाश्रम उनके लिए, बड़ा ओल्ड एज होम ढूंढा है। तो हाउ दिस यू कैन सी दीज ऑल सिम्टम्स आर गिवन इन शास्त्र, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ के वृद्धाश्रम में चले जाते हैं लोग। क्या होगा सोसाइटी का, यही इसीलिए क्योंकि आप इनका प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, तो उनके मन से कर्स निकल रही है, उनके मन से बददुआएं निकल रही हैं, अभिशाप निकल रहे हैं।
समाज खराब हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। और ये वृद्धाश्रम तो छोड़े, वो अलग बात है। जैसे बाप माँ बाप से अलग रहते हैं हम लोग, हाँ मतलब जो आईटी में जॉब किया वो कोलकाता में या दिल्ली में या हाँ बैंगलोर में रहते हैं, माँ बाप घर में रह जाता है, तो वो हाँ। तो वृद्धाश्रम हो गया। तो वो तो जानबूझ के वृद्धाश्रम नहीं छोड़ते, मगर घर घर से दूर रहते, वो भी तो एक वृद्धाश्रम हो गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो भी हम ही लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखिए ना, सोसाइटी ऐसी बन गई है कि आपको एक जगह रोजी रोटी मिलेगी नहीं। एक जगह रोजी रोटी के लिए अगर आप व्यापारी बनेंगे तो आपको उतनी सफलता भले ही ना मिले। हो सकता है कि उतनी सफलता नहीं मिले। तो व्यक्ति क्या है, हमारे माँ बाप ने स्वयं ही पढ़ाया। अभी उस समय भी ये ज्ञान नहीं था ना। लेकिन फिर भी देखिए, आप अगर माता पिता को दूर रहते हैं एक अलग चीज है, क्योंकि पहले भी तो लोग जाते थे, वैदिक काल में भी लोग व्यापार करने कहीं दूर जाते थे फिर आ जाते थे। तो ठीक है, अगर आप फिर भी ध्यान रख रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन जब आप उनको छोड़ देते हैं, उनको त्याग देते हैं, लोग आपने मैंने तो एक वीडियो देखा था, एक व्यक्ति लेके आया वृद्धाश्रम के सामने, उनको उतार दिया, उनका झोला उठा के फेंक दिया और फेंक के गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। ऐसे ऐसे लोग हो रहे हैं, हम उनकी बात तो पहले उनकी बात कर रहे हैं। और जो लोग आईटी में रह रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ती है तब जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। उनकी तबीयत खराब है तो बीच में जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, एटलीस्ट कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए उनके लिए। तो एटलीस्ट आप उनका ध्यान तो रख रहे हैं। यहाँ पे उनका है कि जब उनको ध्यान नहीं रखा जाता, ओल्ड एज जो लोग हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। तो यस, ये भी है, सोसाइटी की बहुत सारी इश्यूज हैं। तो कलयुग ऐसे ही बढ़ रहा है प्रभु, हम लोग भी उसके पार्ट ही हैं एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट, somebody wants to read? जातयितस्वमेधा सत्तं त्रिभिरुतं कल्पकै तदस्य पावनं दक्षु सतमेनोर इबानत। Translation: Lord Sri Krishna caused the three well-performed Ashwamedha Yajna or sacrifice to be conducted by Maharaj Yudhishthira, and thus caused his virtuous fame to be glorified in all directions, like that Indra, who had performed 100 such sacrifice. Purport. Uh, this is something like the preface to performance of Ashwamedha Yajna by Maharaj Yudhishthira. The comparison of Maharaj Yudhishthira to the king of heaven is significant. The king of heaven is thousands of times greater than Maharaj Yudhishthira in opulence. Yet the fame of Maharaj Yudhishthira was not less. The reason is Maharaj Yudhishthira was a pure devotee of Lord, and by his grace only was King Yudhishthira on the level of King Heaven, even though performed only three yajnas, whereas the King of Heaven performed hundreds. That is the prerogative of the devotee of the Lord. The Lord is equal to everyone, but a devotee of Lord more glorified because he is always in touch with all the grades. The sun rays are equally distributed, but still there are some places which are always dark. This is not due to the sun, but to the repetitive power. Similarly, those who are 100% devotee of the Lord get full-fledged mercy of the Lord, which is always equally distributed everywhere. भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं उनको भगवान स्वयं उनका गुणगान करना चाहते हैं समाज में। और इसीलिए भगवान उनको आगे बढ़ाते हैं। भगवान अपना गुणगान करने के लिए कभी उद्धृत नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि कोई उनका इतना गुणगान करे। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा ध्यान करो और मेरे भक्त बनो। तो भगवान केवल वहां पर सत्य बोल रहे हैं, भगवान कोई अहंकारी नहीं हो रहे हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि भगवान अहंकारी हो रहे हैं, लेकिन भगवान वास्तव में सत्य बोल रहे हैं कि ये इस प्रकार से प्रकृति बनी है, इस प्रकार से आपका स्वभाव है, आप मुझे भजोगे तो आप मुझे प्राप्त करोगे। ये नेचुरल प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस है, इसको बताना कोई अहंकार नहीं।
लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान जानबूझकर उनका गुणगान करवाना चाहते हैं, और उनका गुणगान करवाने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट करते रहते हैं। कभी भगवान उनको मुश्किल परिस्थितियों में डाल देते हैं, और मुश्किल परिस्थितियों में वो भक्त किस प्रकार से व्यवहार करता है उस व्यवहार के आधार पर संसार उसका गुणगान करने लगता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भगवान ने इतनी मुश्किल परिस्थिति में डाला। एक 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति अमेरिका में है, अकेले कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके भगवान का जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया जाए, और भगवान ने इतनी मुश्किल आई, उनको हत्या का प्रयास हुआ, 2 हार्ट अटैक आए, उनको असफलताएं मिली, लोगों ने उनको निग्लेक्ट किया, लेकिन देखिए भगवान ने कैसा उनका गुणगान किया कि उनको पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, जगत गुरु बना दिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे पांडवों को भगवान ने कितना कष्ट में डाला। और आप कहेंगे भगवान के भक्त इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? भगवान के भक्त इसीलिए कष्ट उठाते हैं कि भगवान उनका गुणगान करना चाहते हैं, इसलिए उनको डालते हैं। और भगवान को पता है कि ये व्यक्ति मेरा भक्त है, शुद्ध भक्त है, और इसको अगर मैं मुश्किल में डालूंगा तो ये भाग के नहीं चला जाएगा, मेरा अभक्त नहीं हो जाएगा ये। तो भगवान ऐसे ही लोगों के साथ, हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी वो भक्ति का स्तर नहीं है। हमारे मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम नहीं है। भगवान भी अपने अपने घर वालों को लेके, अपने घर वालों को लेकर, अच्छा आज सुनो तुम्हारा ये रोल है, अभी तुम्हारा मतलब ऐसा है कि योग माया पोटेंसी इस तरीके से रहती है, इट्स नॉट लाइक ड्रामा, बट योग माया पोटेंसी अरेंज करती है इस प्रकार से। तो भगवान भक्तों का, अपने शुद्ध भक्तों का गुणगान करते हैं। एक तो उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में डाल देते हैं, और दूसरा वो चाहते हैं कि कैसे भी दूसरे लोग, वो भगवान स्वयं उनके लिए ऐसी चीजें अरेंज भी करते हैं, उनसे मिराकुलस काम करवाते हैं। यही मिराकुलस काम जो होते हैं वो सभी को यह दिखाते हैं कि यह भक्त कितना महान है। तो भगवान को खुशी मिलती है कि जब उनके भक्त का गुणगान किया जाता है। तो आप अगर भगवान का गुणगान करने की अपेक्षा कि उनके भक्त का गुणगान करेंगे तो भगवान आपसे ज्यादा प्रसन्न प्रसन्न होते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि भगवान का भक्त हमेशा उनसे जुड़ा रहता है। जैसे सूर्य की किरणें हैं वो सब जगह जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह जो है डार्कनेस बनी रहती है, क्योंकि वहां पे कुछ अवरोध है। जैसे रेडियो है, रेडियो चल रहा है तो रेडियो स्टेशन आपको लगाना पड़ता है, तो जब तक आप वो फ्रीक्वेंसी पकड़ेंगे नहीं तब तक वो रेडियो आएगा नहीं। तो ये रिसेप्टिव रिसेप्टिव पावर वही है। हमारी क्या रिसेप्टिव पावर है, हम कितना पॉजिटिवली भगवान को कनेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे ही हमारा डेवलपमेंट प्रोग्रेस होती है भक्ति में। तो है सभी के लिए इक्वल, बट जो उसको ज्यादा रिसीव करता है वो उसकी इच्छा है। जैसे आग जल रही है, आग जल रही है तो आप आग से गर्मी पाना चाहते हैं, तो जितना आगे जाएंगे आग के अपने आप ही गर्मी आएगी, बिकॉज आग का तो नेचर ही है, ऊष्मा जो है, जो हीट है वो आग का नेचर है। तो भगवान का नेचर, आप भगवान के जितना करीब जाएंगे उनकी गर्मी को फील कर सकते हैं, उनके प्रेम को फील कर सकते हैं, और जितना दूर जाएंगे उतना नहीं फील कर पाएंगे। तो दिस इज अप टू अस कि हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रभु इस, जी, हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो प्रीवियस क्वेश्चन का जो था ना, सनलाइट इज एवरीवेयर बट यू हैव टू रिसेप्टिव पावर, हाँ थोड़ा प्रभु जी थोड़ा डिस्क्राइब करिए ना, जो सनलाइट है ना। हाँ, जो सन रेज है वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। बट रिसेप्टिव पावर, हाँ। बट देर आर सम प्लेसेस विच आर ऑलवेज डार्क। यहाँ पर यस, ऐसा किया जा रहा, कहा जा रहा है, प्रभुपाद यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य की किरणें तो सभी के लिए उपस्थित है, लेकिन कुछ लोग, कोई शेड में जाके खड़ा हो जाए, है ना, कोई शेड में किसी ने अपने आप को खुद ही ढक लिया, तो उसको तो सनरेज नहीं मिलेंगी। तो ये हमारे ऊपर, जब तक आप, सनलाइट सबके लिए है, लेकिन सनलाइट के लिए आपको निकल के आना पड़ेगा। अगर आप खुद छाता लगा के खड़े तो आपको सनलाइट नहीं मिलेगी। यू वांट सनलाइट, यू हैव टू पुट एफर्ट कि हाँ मैं सनलाइट में खड़ा रहूं। तो इसी प्रकार भगवान की कृपा सबके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो भगवान की कृपा के लिए पात्र बनना चाहता है, स्वयं जिसके मन में इच्छा नहीं है, भगवान उसको फोर्स नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति को फोर्स नहीं करेंगे। भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारे मन में इच्छा है, तो जो जितना ज्यादा इच्छा करता है उतना ही वो महान भक्त होता जाता है। जितना ज्यादा इच्छा करता है मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान से प्रेम करूं, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो वो इच्छा, अब जैसे एक ब्रह्मचारी हैं, श्रीनिताय प्रभु ब्रह्मचारी हैं, क्यों बन गए? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दूं। हमारी इच्छा उनसे थोड़ा कम, कि हमारे हमें ये भी होना चाहिए कि भाई हम, मुझे घर का कंफर्ट भी मिले, और मुझे पत्नी भी मिले, मेरे बच्चे भी हों, मेरा वंश भी आगे बढ़े। तो हमने भगवान के अलावा और भी चीजों को प्रायोरिटी दी, है ना। तो अगर आप
देखें तो डिटैचमेंट, बेसिकली डिटैचमेंट है हार्ट की चीज। ऑफ कोर्स गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप भक्ति पूरी तरह कर सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज है यहाँ पर बताई जा रही है कि जो उन व्यक्तियों के लिए जो स्वयं भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे जो व्यक्ति एसोसिएशन मिल रहा है लेकिन वो छोड़ दे एसोसिएशन, हम लोग सब बैठ के यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं भागवतम पर, लेकिन कोई छोड़ के चला जाए, उसको लगे कि ये क्या काम का है, मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट काम, न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना है सुबह बैठ के, वो भागवतम क्यों पढ़ेगा बैठ के? क्योंकि उसको न्यूज़पेपर में मजा आ रहा है। तो उन लोगों को डार्कनेस में, वो कहा गया वो लोग डार्कनेस में। अदरवाइज देखिए, भगवान का नाम जप करना किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीबडी हैज अ टंग, जो है आप नाम जप कर सकते हो। तो वो कृपा सबके लिए, इट्स सच ए सिंपल प्रोसेस। इतना आसान तरीका है सुबह सुबह बैठ के बस भगवान का नाम जप करना, इतना आसान है। फिर भी नहीं करते हैं लोग। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका जो मन है वो दूसरी चीजों में लगता है। मन लगता है न्यूज में, न्यूज़पेपर में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय तृप्ति में, उसमें मन लगता है। तो इसको आगे बढ़ाने में थोड़ा कष्ट होगा। जैसे आप लोग आ रहे हैं, थोड़ा कष्ट उठा रहे हैं, आधा घंटे यहाँ बैठ रहे हैं, है ना? तो कष्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मजा आने लगेगा, उसमें आनंद मिलने लगेगा। क्योंकि ये रेसिप्रोकेशन वाला प्रोसेस है, ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। जैसे जैसे आप भगवान को एक कदम आगे बढ़ाओगे, भगवान 1000 कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाएंगे। राइट? ठीक है प्रभु? हरि बोल, यस हरि ये प्रभु। बोल। ठीक कैसे होगा प्रभु, भगवान की कृपा हमारे ऊपर आ रहा है। यस, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। भागवतम इज कृष्ण एक्चुअली। भागवतम आप पढ़ रहे हैं मतलब कृष्ण से डायरेक्टली एसोसिएट कर रहे हैं। और नाम जब जो कर रहे हैं डायरेक्टली कृष्ण आपके जिह्वा पर बैठे हैं, डांस कर रहे हैं भगवान। ठीक है? हरि बोल। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन शायद सुने नहीं आपने। हाँ, क्या क्या? मैंने पूछा, मतलब भगवान का मर्सी आपको मिल रहा है तो ये कैसे हम महसूस करें। भगवान का मर्सी हमको मिल रहा है, उसको कैसे अनुभव करें? हाँ। भगवान की मर्सी किस रूप में मिल रही है वो हम कई बार नहीं जज कर पाते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान की मर्सी इसी रूप में मिलनी चाहिए। तब हमें दिक्कत होती है। तो अगर हमें भगवान की मर्सी, भगवान की कृपा मुझे मिल रही है कि नहीं, वो ये देखना है, तो आप अपने गुरु से पूछिए, है ना, कि मुझे कैसे मिल रहा है। अभी आप जैसे अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता है, ग्रेटफुल होना चाहता है, तो उसके लिए हजार चीजें ऐसी हैं जिनमें, जिसके लिए आप भगवान के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचें कि ये आपको ऑक्सीजन कौन दे रहा है, आप कहेंगे ऑक्सीजन सबको मिल रही है। लेकिन एक व्यक्ति है जो ये सोच रहा है, भगवान का भक्त, ये ऑक्सीजन तो मुझे भगवान दे रहे हैं। ये जो जो पूरा एटमॉस्फियर है, मुझे एक फैमिली दी है भगवान ने, जो फैमिली प्रेम करती है, मुझे बच्चे दिए भगवान ने। तो जिसको ग्रेटफुल होना है, जिसको देखना है कि भगवान की कृपा कहाँ से आ रही है, उसके लिए हजारों चीजें हैं संसार में देखने के लिए, क्या क्या कि भगवान की कृपा आ रही है। ठीक है? वो तो नॉन डिवोटी के लिए भी इक्वल है, हाँ कोई वही भी तो। हो, प्रत्येक जीवात्मा के लिए इक्वल है। लेकिन वही है, रिसेप्टिव, जो रिसेप्टिव नहीं है वो उसको अनदेखा कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। और दूसरा है जो भक्त है, उसको कैसे दिखाई देगा? भक्त को ऑटोमेटिकली दिखना चाहिए कि जैसे ही आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो आपको मन में भी आप महसूस कर सकते हैं, यू फील दैट पीस ट्रैंक्विलिटी। आपका स्ट्रेस, आप देखेंगे जो स्ट्रेस है ना, आपका कम हो रहा है ऑटोमेटिकली। आपको भगवान की कृपा से कैसे हो रहा है कि आप अपना मन को नियंत्रित कर पा रहे हैं। आप लोगों से बात करें, आप देखेंगे आपकी पॉजिटिविटी से लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, तो कह रहे हैं ये बहुत पॉजिटिव इंसान है। यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जीवन में यू एक्चुअली, आप देखेंगे कि खुद आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। जैसे जैसे आप जितना सीरियसली आप भक्ति करेंगे, सिंसियरली करना है, अहंकार आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लोभ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप सिंसियर हैं, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, अगर आप बिल्कुल से दासों के दास बन के रहना चाहते हैं, आप देखेंगे समाज आपसे बहुत प्रेरणा लेगा। तो भगवान की कृपा कैसे आ रही है, आप देखिए हमारा जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो हम क्या क्या करते थे? हम क्या क्या करते थे? सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, गंदे कार्य करते थे,
है ना, बहुत सारी चीजें करते थे हम, और आप भक्ति में आए हैं तो देखिए किस प्रकार से आपके ऊपर कृपा आई है। आप नॉट ओनली कि आप चेंज हुए हैं, आपके, आप देखेंगे छोटा सा प्रयास करते हैं बहुत बड़ा फल भी मिल जाता है। भगवान कहते हैं मैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं अपने भक्त की पूरी देखभाल करता हूं। तो कैसे? भगवान कहते हैं जो वो लैक करता है, जो उसके पास नहीं है, मैं उसको देता हूं, और जो उसके पास है मैं उसकी प्रिजर्व करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन उसको देखने का मतलब ये है कि उस वो हमें दिखाई कैसे देगा? वो हमें वो चक्षु जो है, शास्त्र चक्षु है, उनसे दिखाई देगा। गुरु की कृपा से दिखाई देगा कि हाँ भगवान की कृपा आ रही है। गुरु से हम जब तक हम बैठ के बातचीत नहीं करेंगे ना, आप देखेंगे, आप अपना जीवन देखिए ना कितना परिवर्तित हो गया, पहले और आज के जीवन में कितना अंतर। दैट मीन्स आप तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, कृपा आ रही है, जीवन अच्छा चल रहा है, कृपा आ रही है। और भक्ति जो करता है वास्तविक रूप में, आप देखेंगे कि मेटीरियल चीजों से आपका अफेक्शन कम होता जाता है। जितना सिंसियरली आप भक्ति करेंगे, उतना ही आपका नेम फेम ग्लोरी पैसा प्रॉपर्टी और बाकी जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनके प्रति आपका अट्रैक्शन कम होने लगेगा। आप अट्रैक्शन कम होने लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये आवश्यक है, बट आपकी जो एंजाइटी इनको लेके रहती थी, चिंता, आपकी चिंता कम होती जा रही है। हाँ, ये बात सही है। आपका चिंतन बढ़ता जा रहा है, चिंता कम हो रही है, चिंतन बढ़ता जा रहा है, कृष्ण के बारे में आप सोचना ज्यादा शुरू कर रहे हैं। जितना आप भागवतम पढ़ेंगे भगवान के बारे में, आप देखेंगे भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को। आपकी आंखों से आंसू आने लगते कि भगवान इतना प्रेम करते हैं। अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए क्या किया, प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए पूरा अवतार कर ले लिया उन्होंने। कितना प्रेम करते हैं भगवान। वेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट लव फ्रॉम कृष्णा, देन यू विल फील दैट कनेक्शन। हाँ कृष्ण है मेरे लिए, है कृष्ण, मुझे बचाएंगे। रथ का पहिया लेके भगवान खड़े हैं अर्जुन को बचाने के लिए। आप देखेंगे मेरी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, कृष्णा विल टेक केयर। वो अपने आप आपको मन में डेवलप होने लगेगा। जैसा आप जितना सिंसियरली चैंटिंग करेंगे, जितना सिंसियरली आप भक्तों का संग करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, है ना, ABCD फॉलो कीजिए अच्छे से। एसोसिएशन, बुक रीडिंग, है ना, चैंटिंग एंड प्रसादम। ABCD डाइट, ABCD, ये भक्ति का फॉलो अच्छे से कीजिए, अपने आप प्रोग्रेस आपको दिखाई देती रहेगी। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु। ओके, भाई बोल हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय।